So, hello everyone, welcome to Ask Geology Group, a whole new way to understand our Mother Earth. So, in this today's class, we will be discussing about the only classification. Okay, so classification of your igneous rock. Then we will see that what are the various types of steps in this sense. What are the characteristics? Whether it will be compositional, whether it will be chemical, actually what actually determines or what is the parameter to classify these rocks, and what are different types of classification schemes are there, like a QAPF type of diagram, task diagram, and whether all the igneous rocks, whatever the rocks we are finding, okay, whether they will be or this QAPF and the task diagram, will these two diagrams are sufficient for the classification of your all igneous rocks that we find on the surface of earth, ये हम देखेंगे, ठीक है। एंड ये बस एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि there are so many of types of igneous rocks, around 1500 to 1900 types of rocks, but our igneous rock classification that takes or that considers some around 500 to 700 or up to 1000 different kinds of igneous rocks. Okay, so and yes, let's see. So just tell me. So I let me just tell you about this group. This is our Ask Geology group, a whole new way to understand our Mother Earth. So this is one type of your preparation, geo preparation platform for different kinds of exam. Okay, for IIT JAM, CSR NET, GATE, GSI, BARC, and all competitive exams related to geology. And we are also considering the OPSC, UPSC, whatever, like PSC services in which geology is opted as an optional subject. So these are the phone numbers you can contact if you're interested. This is the mail ID. You can put a mail to this mail ID, and there will be a link that will be provided in the description box. By clicking on that, you will be getting access to join all the social media platform which are available. Okay, so let's start. So before going to igneous rock classification, first of all, I hope that you all know about the rock cycle. What actually the rock? Igneous rock is considered to be the primary rock, and igneous rocks are formed by the direct crystallization of your magma. And all of you know what is magma. Magma is basically the molten rock material. And for this magma, we know, if you consider the internal structure of Earth, okay, if you consider the internal structure of Earth, then this asthenosphere, one mechanical layer is present in between around 120 to 200 kilometer at a depth from the surface of earth, that is called your asthenosphere. And that asthenosphere is the source of your magma generation. And all of you know that when you go down from the surface of earth, then the geothermal gradient and geobarometric gradient, but the temperature and pressure that increases, and that increase in temperature, okay, that increase in temperature, that becomes so intense that at this 120 to 200 degrees and 200 kilometer, the temperature is so intense that nothing can stay in solid state. Okay, then this is one source. Okay, this is asthenosphere, this is the source of your magma. Okay, all of you know these things. And directly magma can come from this asthenosphere through the volcano. Okay, and by examining this composition of this material that came from the direct volcanoes, they just found it to be basaltic in composition. That's why basalt is considered to be the primary or the parent magma. And our scientists or our geoscientists, they have just so many of experiments they just did and found that the differentiation or the formation of different kinds of magma from the basaltic magma, which is considered to be the parent, is possible. Okay, and directly this molten rock material, when they just come out, then they will form the rock that is called your igneous rock. So these are directly crystallized from the magma. So igneous rock क्या बोलते हैं? Directly crystallized crystallized solid from मैग्मा। ओके, उसको हम इग्नियस रॉक बोलेंगे। एंड ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, कहाँ कहाँ से तुमको मिल सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टेक्टोनिक सेटिंग्स वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट दिस इग्नियस रॉक्स? ठीक है, अभी इग्नियस रॉक ये देखो, तुम मैंने बोल दिया ये तुम्हारा आस्थेनोस्फीयर में है, और पूरा डी डबल डैश लेयर में अगर तुम जाओगे, यहाँ पे जो तुम्हारा मैंटेल प्लूम का जो सोर्स होता है, दैट इज कम्स फ्रॉम 2900 किलोमीटर। ओके,
सो यहाँ पे तुम्हारा ये एंड डिपेंडिंग अपॉन दीज थिंग्स द कन्वेक्शन ऑफ योर मेंटल दैट इज कंसिडर्ड टू बी वन तुम्हारा है, तुम्हारा होल मेंटल कन्वेक्शन मॉडल है, एक तुम्हारा तुम्हारा सिर्फ आस्थेनोस्फेरिक मेंटल मॉडल है, आस्थेनोस्फेरिक मेंटल मॉडल। तो इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे एंड उसका जो इम्प्लीकेशंस विथ रिस्पेक्ट टू आवर इंडियन प्लेट और द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में कभी देख लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि यहाँ से नाउ दिस magma they are maintained at a very high temperature pressure condition, and there are some overburden, the contour of whatever they are present, they are being overburdened by a very huge thick pile of sediments or rocks. Okay, now how they will come into the surface? This volcano, they are one possibilities. And now whether this like this is the overburden, okay, and this is the magma chamber. Now this magma chamber has to melt or somehow it has to come onto the surface of earth, then only igneous rock can crystallize. Okay, and within this passage, okay, there are possibility that it can come away onto the surface of earth first thing, or it may reside inside, okay, and it may reside at a very shallower depth. So this is let A, this is B, and this is C. Now this A is considered to be your plutonic, the rock that will be crystallized, that will be called your plutonic rock. B will be called your hypobasal rock, and C will be called your volcanic rock, because they will directly be just given away onto the surface of earth, onto the atmosphere. Okay, so three possible types of igneous rocks we can get. Okay, plutonic, hypobasal, and volcanic. But we will consider our studies up to the plutonic and volcanic. And now this is only the possibility where this igneous rock can come into picture onto the surface of our or the rocks they will be accessible to us. Okay, so in this case this plate tectonics में भी हम देखेंगे divergent plate boundary. You can see these are the divergent plate boundary where your two tectonic plates they diverge from each other. Tectonic plates, all of you know tectonic plates. Okay, all of you know these tectonic plates, major plates, minor plates. I wish or I hope that you all know these things, huh? डाइवर्जेंट यहाँ पर भी तुम्हारा मैग्मा आ सकता है। लेट्स जस्ट चेंज द कलर। सो यहाँ पे तुम्हारा मैग्मा आ सकता है डाइवर्जेंट, ठीक है। ये तुम्हारा MORB हो गया, मिड ओसेनिक रिज बासोल्ट, बिकॉज बासोल्ट वहां पे आएगा। कॉन्वर्जेंट में भी हो सकता है, ठीक है, वहां पे भी मेल्टिंग हो सकता है। डायरेक्ट वोल्कानो ये तुम्हारा हॉटस्पॉट से भी हो सकता है। ओके, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हारा रीजन है ये तुम्हारा ओशियन में भी आ रहा है, कॉन्टिनेंट में भी आ रहा है, एंड इन बिटवीन ओशियन कॉन्टिनेंट जो तुम्हारा जोन है उस एरिया में भी आ रहा है। सो देर आर सो मेनी, दीज आर कॉल्ड वेरियस टेक्टोनिक सेटिंग्स। इसको हम बोलेंगे कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट कौन सा वाला? ये तुम्हारा ओशियन कॉन्टिनेंट कॉन्वर्जेंस है, ये तुम्हारा सिंपल ओशियन ओशियन डाइवर्जेंस है। इफ दिस डाइवर्जेंस इज हैपनिंग ऑन ए कॉन्टिनेंट देन दैट विल बी कॉल्ड योर रिफ्ट, ठीक है। अभी कैसे भी हो के प्रेशर उसका रिलीज होगा, इट विल गेट सम पाथ, देन इट विल कम टू द सरफेस। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी वेयर ए मैग्मा व्हिच इज मेंटेन्ड एट ए हाई प्रेशर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ कैन कम ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, ये रिफ्टिंग हो सकता है, ये रिफ्ट होगा, ठीक है, या फिर कोई एक कन्वर्ज हो रहा है, मेल्टिंग होके आ रहा है, ठीक है। दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्टोनिक सेटिंग्स वेयर वी कैन फाइंड आवर इग्नियस रॉक्स, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एंड ये जो तुम्हारा इग्नियस रॉक, जैसे कि मैंने बता दिया कि व्हाट लाइक द बासोल्ट इज कंसिडर्ड टू बी योर parent magma, and from this basalt there are so many of like andesitic, dioritic, okay, और तुम्हारा कार्बोनाटाइट, ये सब बहुत सारे रॉक्स हैं जो बहुत सारे मैग्मा सीरीज हैं जो कि ये तुम्हारा प्राइमरी मैग्मा सीरीज से डिराइव किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ योर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ओके, तुम्हारा एक है क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, एंड बाय मेल्टिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सॉलिड लाइक मेंटल पेरिडोटाइट, मेल्टिंग, ये जो मेल्टिंग होगा, मेल्टिंग का डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। तुम्हारा बैच मेल्टिंग क्या है, ओके, और तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग, एंड डायनामिक मेल्टिंग। एंड डायनामिक मेल्टिंग जो होता है ये बेसिकली हमारे नेचर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड अनदर थिंग इज दैट ये जो डिफरेंट टेक्टोनिक सेटिंग के बारे में मैं जो बताया, ये डिफरेंट टेक्टोनिक सेटिंग को हम कैसे डिटरमिन करेंगे दैट फ्रॉम व्हिच टेक्टोनिक सेटिंग दिस मैग्मा हैज कम। फॉर दैट वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स।
Okay, all of you know what is trace element, what is the weight percentage of these elements in a system. Okay, and we will be covering these things in great detail. Okay, trace element geochemistry someone will take, but no problem, I'll be adding something to it also. And what are the different tectonics, OIB you can see the within plate basalt. दिस इज आइलैंड आर्क, एक तुम्हारा टेक्टोनिक सेटिंग है। कैल्क अल्कालाइन बसोल्ट भी कहाँ पर एक टेक्टोनिक सेटिंग में आएगा। एमओआर भी मिड ओसेनिक रिज बसोल्ट है। ओआईटी ओसेन आइलैंड थोलिटिक, ओसेन आइलैंड अल्कालाइन बसोल्ट, ओआईवी ओसेन। ये देखो तुम्हारा कन्वर्जेंट जो है, ट्रेन सिस्टम है, डाइवर्जेंस है, तो डिफरेंट टेक्टोनिक सेटिंग में हमें माग्मा मिल सकता है। उसके बाद अब इग्नियस रॉक को हम पढ़ेंगे क्यों? ठीक है, अभी तक आ गया कि इग्नियस रॉक, ओके इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन करेंगे, नो प्रॉब्लम, इग्नियस रॉक क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इग्नियस रॉक कहाँ कहाँ मिलता है हमें पता चल गया अभी। नाउ ये इग्नियस रॉक को हम पढ़ेंगे क्यों? व्हाट इज द implications ऑफ स्टडिंग दिस igneous rocks, or what is the objective? Understanding the eruptive process, first thing. Okay, understanding the eruptive process, and you know this eruptive process that is dependent upon various types of factors. The one is somehow this is the content of volatiles. Okay, तो eruption कहाँ पर, and depending upon this eruptive style, okay, that is volcanic eruptive index, ऐसा कुछ है। ठीक है, जहाँ पर तुम्हारा प्लिनियन, वोल्कानियन, वेसुवियन एंड ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्कानिक टाइप्स हैं। हवाईयन जो तुम्हारा हवाईयन, HAWAIIN, जो भी स्पेलिंग देखना है, हवाईयन जो है दिस इज मोस्ट क्वाइट टाइप। ओके, क्वाइट टाइप लाइक वोल्कानोजेनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स जो है दैट इज मिनिमम, एंड मैक्सिमम होता है प्लेनियन का। ठीक है, एंड इसके बेसिस में अगर इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग इरोप्टिव प्रोसेस दिस इग्नियस रॉक्स कैन हेल्प अस। Okay, and assessing from previously erupted products the hazard presented by a volcano to surrounding communities, and these volcanoes are the only, okay, this volcano and some in some cases the plumes, okay, these volcanoes are the only medium from where direct asthenospheric magma is coming onto the surface of earth. Okay, देन अभी ये कितना लाइक यहाँ से कौन सा मैग्मा आ रहा है एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द सराउंडिंग। ओके, दिस इज ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे अफेक्ट करता है एंड क्या क्या इसमें कंटेंट है। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा कि जो तुम्हारा एक्सटिंक्शन हो गया था डायनासोर का, ओके, डायनासोर एक्सटेंशन हुआ था, तो इसमें तुम्हारा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के साथ और कुछ कुछ लाइक वोल्केनिक जैसे कि फ्लोड बासल्ट डेकान ये सब चीज हो गया था। ठीक है, तो इसमें था कि इरिडियम अनोमली बहुत ही ज्यादा था। तो कौन सा लाइक इफ इट इज रेडियो एक्टिव, ओके, क्योंकि बासल्ट तो कुछ भी, दिस इज मोल्टन रॉक मटेरियल, मतलब सारा का सारा ट्रेस एलिमेंट इसके अंदर हो सकता है। तो कौन सा ट्रेस एलिमेंट ऐसा है या फिर कौन सा ऐसे डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है जो कि एक्सटेंड करने के लिए भी, एक्सटेंशन के लिए भी लाइक एक्सटेंशन भी करवा सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने से हमें पता चलेगा कि क्या क्या इसमें जो hazardous टाइप्स ऑफ थिंग्स है वो हमें कैसे अफेक्ट करेंगे और उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। नाउ इन्वेस्टिगेटिंग मैग्मा इवोल्यूशन इन सब वोल्केनिक मैग्मा चैम्बर, इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखना है, एंड दिस इज एक्चुअली द मैग्मेटिक इवोल्यूशन। ओके, and various types of investigating the magmatic evolution in subvolcanic magma chamber. In subvolcanic magma chamber or in subsurface whatever the magma chamber is present, there we will see that how and what process is responsible for the formation of different types of or different kinds of magma series, and इसका इंपॉर्टेंस और जियोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें पता चल जाए कि इफ इट इज कार्बोनेटाइट देन इट विल जस्ट होल्ड सम दिस टाइप्स ऑफ RE और सम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एंड इफ इट इज कंसिडरिंग दिस मच देन these are the various types of rocks or minerals we are expecting to get from this particular region. Okay, and documenting the structure and formation of oceanic and continental crust, this is very important, क्योंकि जब हम देखेंगे when we consider the Big Bang theory, the formation of our universe or the formation of earth, when we will see that this the present state of our earth, that is the tectonic जो भी division है, crossed mantle core, that that layer division was not there, and it was actually the process when we see the like crustal evolution path, then we will see that how this brittle crust that developed, how this ductile mantle developed, how this core developed. Okay, and ये सब उस टाइम में वेरी हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट में ये सब हुआ था, सो दे आर कंसिडर्ड टू बी इग्नियस काउंटरपार्ट।
ठीक है? तो जैसे कि तुम्हारा बीएससी बल्क सिलिकेट अर्थ कंपोजिशन देखेंगे। तुम्हारा निका सॉरी एनआईएफई इनर कोर को या फिर आउटर कोर कोर का कंपोजिशन जो देखेंगे, ये भी तुम्हारा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा एक अप्लाइड पार्ट है, ठीक है? जो कि हमारा इग्नियस देखने के बाद ट्रेस एलिमेंट स्टडीज एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड इन्फरिंग द पास्ट टेक्टोनिक एनवायरनमेंट, कहीं पर मिडोसेनिक रीज था, आइलैंड आर कहीं पर था। जैसे कि मैंने बताया तुम्हारा जो तुम्हारा कॉन्टिनेंट एंड ओशियन कन्वर्जेंस जोन में, वहाँ पे पोर्फिरी कपॉर डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा बन सकता है, ठीक है? पोर्फिरी कपॉर डिपॉजिट बहुत ही ज़्यादा बन सकता है। देन इसको अभी यहाँ पर जहाँ पर पोर्फिरी कपॉर डिपॉजिट्स हैं, वहाँ पे मे बी ये तुम्हारा कन्वर्जेंस अभी नहीं हो रहा होगा। दैट इम्प्लाइज कि ये जो पोर्फिरी डिपॉजिट्स हुआ है, तो यहाँ पे पहले कभी ये वाला कन्वर्जेंस सेटिंग था, अभी नहीं है, ठीक है? या फिर डाइवर्जेंस कहीं था, अभी नहीं है। एसेस्मिक रीज जो बोल देते हैं, वहाँ दैट इज बेसिकली a transform टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। नाउ इट इज नॉट एक्टिव, दैट मीन्स इट इज aseismic, ठीक है? वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक एक्टिविटी कहीं पर हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लास्ट ईयर जो प्रीवियस कंडीशन भी देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट और डिपॉजिट का प्रोस्पेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टैब्लिशिंग द एब्सोल्यूट एज ऑफ सक्सेशन ऑफ सेडिमेंट्री एंड वोल्केनिक रॉक, एज हम डिटरमाइन कर सकते हैं by using the dating concept, identifying the source from which magma has originated, ओरिजिनल प्रोटोलिथ डिटरमाइन करने के लिए, भी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? And identifying from erupted magmatic rock character and distribution of geochemical domains in the underlying mantle and their evolution through time, this is also one sub part of your ore geology, ठीक है? And this igneous rock can tell us not only about the process taking place but also about the process that have taken earlier in the earth history। जैसे कि अभी हमारे पास तुम्हारा आर्कियन टाइम में, ओके, और प्री कैम्ब्रियन टाइम में जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ योर जो कोमाटियाइट सबको पता है। नाउ दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर आर्कियन टाइम, ठीक है? आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन टाइम में कोमाटियाइट का जो टेक्सचर है, कौन सा टेक्सचर है? कोमाटियाइट क्या दिखाता है? स्पिनिफेक्स टेक्सचर। कोमाटियाइट स्पिनिफेक्स टेक्सचर दिखाता है ना, ब्लेड्स, ओके, ब्लेड्स। ये जो तुम्हारा टेक्सचर है ना, जहां पर तुम्हारा कोमाटियाइट मिल रहा है, कोमाटाइट एंड कोमाटियाइट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, कोमाटियाइट मिल रहा है, देन दैट इज इंडिकेटिंग दैट दिस रीजन दैट इज फॉर्म्ड, ओके, जो तुम्हारा आर्कियन टाइम है। धरवार में जाओ, कोमाटियाइट स्पिनिफेक्स टेक्सचर इतना ज्यादा मिलेगा तुम्हारा, जहां पर भी तुम्हारा लाइक आर्कियन न्यूक्लियस है, जैसे कि तुम्हारा सिंहभूम में है, तुम्हारा बस्तर क्रैटन में है, छत्तीसगढ़ में छोटा सा है, धरवार क्रैटन में है, यहाँ पर तुम्हें ये है कोमाटियाइट जो है, ये तुम्हारा प्री कैम्ब्रियन का कैरेक्टरिस्टिक और जो सिग्नेचर है, ठीक है? कैसे पता चल रहा है कि ये जो कोमाटियाइट है इग्नियस रॉक है, इसके पास जो स्पिनिफेक्स टेक्सचर है वो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, ऐसे हमको पता चल जाता है। ओके, एंड अबाउट द प्रोसेस दैट ऑपरेट इन पार्ट्स इन द डायरेक्ट, ठीक है, पढ़ लो उसके बाद। अरे प्लेट बाउंड्रीज चलो छोड़ दो। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो दैट आर हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पर है, ठीक है? और मिडोसेनिक स्प्रेडिंग सेंटर, मिडोसेनिक रीज कहाँ पर है, सबडक्शन जोन कहाँ पर हो रहा है, बैकआर्क सेटिंग कहाँ पर है, ट्रांसफॉर्म में भी तुम माग्मा कहीं पर मिल सकता है, सबडक्शन जोन में भी तुम्हें मिल सकता है, ठीक है? देन तुम्हारा जोन ऑफ नियोजन इंट्रा कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग। फर्स्ट थिंग, कॉन्वर्जेंस एक होता है, एक है तुम्हारा कॉन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। ये जो तुम्हारा कॉन्वर्जेंस है, ये तुम्हारा ओशियन में कन्वर्जेंस हो सकता है, ठीक है? ओशियन कॉन्टिनेंट में हो सकता है। कॉन्टिनेंट को कन्वर्जेंस नहीं बोलते हैं, उसको कोलिजन बोलते हैं, ओके? ये जो कोलिजन होता है, नाउ दिस कोलिजन आल्सो मेक्स क्रिएट और जस्ट प्रोड्यूसेस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्मा, ठीक है? ये वाला मैग्मा के बारे में भी हम देखेंगे, बाथोलिथिक इंट्रूजन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है? और दूसरा चीज हो गया तुम्हारा जो डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस में इफ इट इज ओशन डाइवर्जेंस, देन उसको बोलेंगे मिडोसेनिक रीज। इफ इट इज कॉन्टिनेंटल केस में डाइवर्जेंस हो रहा है, उसको बोलेंगे रिफ्टिंग, ठीक है? ये ओसेनिक कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में ये तुम्हारा पोर्फिरी टाइप ऑफ कोपोर डिपॉजिट जो बनता है, ट्रेंच सिस्टम बनता है, ठीक है? वहां पे तुम्हारा जो मेल्टिंग होता है दैट इज रिलेटेड टू योर डीकम्प्रेशनल मेल्टिंग, उसको क्या बोलते हैं? डीकम्प्रेशनल मेल्टिंग। एंड नाउ यहां पर देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमाइन determine why determines why sorry that determines
द डिफरेंशिएशन ऑफ योर मैग्मा। ओके, जैसे कि फ्लूइड हो गया, डिकम्प्रेशनल मेल्टिंग में डिकम्प्रेस हो गया तुम्हारा OH माइनस या फिर जो तुम्हारा वाटर मोलिक्यूल आ जाएगा, देन वो क्या करेगा, मेल्टिंग को थोड़ा इंक्रीज कर देगा। डिकम्प्रेशनल मेल्टिंग ऐसे होता है। डायरेक्ट जहां तुम्हारा कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, या फिर कहीं पर तुम्हारा इग्नियस इंट्रूजन होता है, इंट्रूजन के पास में ही जो तुम्हारा कॉन्ट्री रॉक होता है, इसमें वन टाइप ऑफ ये जो बेकिंग टाइप ऑफ जो बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये एक अलग चीज हो गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, ये तुम्हारा तो सब सरफेस में जो तुम्हारा एक मैग्नेटिक चैम्बर जो बनेगा, ठीक है। तो these are like the possible types of settings where we are expected to find your igneous rocks। कॉन्टिनेंटल फ्लोर बेसल्ट, यहाँ पर देखो इंडिया में हमारा ये पर होगा, ये वाला डेकान फ्लोर बेसल्ट। राजमहल ट्राप देखो, वहां पर भी हमें मिल जाता है। एंड ये सब जो भी है, कार्बियन प्लेटो में कुछ हुआ है, या फिर पराना फ्लोर बेसल्ट है, जो भी है तुम्हारा ये सेंट्रल अटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंसेस है, ठीक है। साइबेरियन ट्राप वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोलंबिया रिवर फ्लोर बेसल्ट। एंड ये जो डिफरेंट डिफरेंट ये जो तुम लाइक फ्लोड बेसल्ट देख रहे हो, या फिर कहीं पर वोल्केनिज्म हो गया है, दीज आर द बेस्ट साइट फॉर इकोनॉमिक deposits which are associated with igneous ore forming processes। then magma क्या होता है, देखो magma it is basically more generalized mixture of melt and crystals। okay, मेल्ट एंड क्रिस्टल होगा, magma क्या होगा, क्रिस्टल होगा, मेल्ट होगा, वोलाटाइल्स होगा। वोलाटाइल्स इज इंपॉर्टेंट, जिसमें हम देखेंगे बेसिकली वाटर को देखेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, एंड सम अमाउंट ऑफ सल्फर स्पेसिस को भी हम देख लेंगे, ठीक है। सल्फर स्पेसिस को क्यों देखेंगे, अभी तुम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अगर देखते हो एंड गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशन देखते हो, दीज आर सिडेरोफाइल, दीज आर चाल्कोफाइल, दीज आर लिथोफाइल, एंड चाल्कोफाइल आर नथिंग बट द सल्फाइड लविंग्स। एंड मैक्सिमम केसेस वेयर वी विल बी सीइंग दैट द बेस मेटल डिपॉजिट्स दे आर ऑल सल्फाइड्स। ओके, कपर सल्फाइड, पाइराइट, चलो CuFeS2, CuS2, ये सब जो भी ये तुम्हारा सल्फाइड्स है, निकेल सल्फाइड, NiS, ओके, निकोलाइट, जो भी है ये तुम्हारा सल्फाइड डिपॉजिट्स मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड लावा क्या है, इरप्टेड टू द सरफेस, उसको बोलेंगे लावा। एंड ये तुम्हारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, लावा एंड मैग्मा में डिफरेंस क्या होता है, वोलाटाइल कंटेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। लावा में तुम्हारा वोलाटाइल्स नहीं होंगे, मैग्मा में तुम्हारा वोलाटाइल कंटेंट्स होंगे, ठीक है। एंड कंपोजिशन ऑफ ए मैग्मा कैन बी नोन फ्रॉम केमिकल जियोकेमिकल एनालिसिस, जो तुम्हारा क्वांटिटेटिव है, ए मिनरल प्रेजेंट क्वालिटेटिव। ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है, इसको बोलते हैं हमारा मोडल एनालिसिस, ठीक है। मोडल रिलेटेड टू योर वॉल्यूम, कौन सा मिनरल कितना है। एंड मिनरलोजी दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स द पोस्ट मैग्मेटिक प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ऑलवेज रिमेंबर, जो मिनरलोजी है ये तुम्हारा प्रोवाइड्स पोस्ट मैग्मेटिक प्रोसेस इंफॉर्मेशन। पोस्ट मैग्मेटिक क्यों है, क्योंकि मैग्मा से अगर क्रिस्टलाइज कर लेता है उसके बाद ही वो एक मिनरल, वो मतलब उसका एक सॉलिड रॉक बनेगा, जिसका मिनरलोजी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड टेक्सचर दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इरप्शन एंड क्रिस्टलाइजेशन हिस्ट्री ऑफ द मैग्मा। नाउ जैसे कि तुम्हारा स्पिनिफेक्स टेक्सचर ही देख लो, ठीक है। वो क्या बताता है, स्पिनिफेक्स टेक्सचर क्या बताता है, द क्रिस्टलाइजेशन हिस्ट्री के बारे में, इरप्शन के बारे में क्या बताता है, अभी हम बताएंगे। जो तुम्हारा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो तुम्हारा जो है, जो टेम्परेचर जियोथर्मल ग्रेडियंट बहुत ही ज्यादा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर कोमाटियाइट वी नीड अराउंड 1200 to 1300 degree centigrade temperature, but nowadays this much of temperature maybe this is not present, ठीक है, जो कि आर्कियन टाइम में था। एंड नाउ दिस कोमाटियाइट और द स्पिनिफेक्स टेक्सचर दैट आर दे आर रिप्लेस्ड बाय द बसोल्ट्स, ठीक है। बसोल्ट अराउंड 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड में हमें बसोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैग्मा तुम्हारा देखो, वाइड रेंज ऑफ मैग्मा क्यों मिलता है, सोर्स ऑफ कंपोजिशन, मिनरलोजी। हाँ, ये अभी इंटरेस्टिंग है। जो तुम्हारा मैग्मा जो जनरेट हो रहा है, मैग्मा जो जनरेट हो रहा है, नाउ इट इज मेल्टिंग समथिंग, ठीक है। ये एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पे मैग्मा है। नाउ ये मैग्मा जब ऊपर आता है, व्हेन इट इज ट्राइंग टू कम आउट, इट हैज टू मेल्ट द ओवरलाइंग, ये जो भी है। नाउ ये जो तुम्हारा सोर्स है, वेदर इट इज क्रिस्टल मेल्टिंग और वेदर इट इज मेंटल मेल्टिंग, that also depends, that also determines the different composition and mineralogy of your magma chamber, okay। And depth of melting, whether it is shallow melting or whether it is deep melting,
इसमें हम देखेंगे शैलो मेल्टिंग होगा तो क्या होगा, डीप मेल्टिंग होगा तो क्या होगा, वोलेटाइल कंटेंट का डिफरेंस क्या होगा, एंड नाउ हाउ दे आर जस्ट making some or how they are just forming different kind of magma. Extent of melting, that is also important. Extent of melting मतलब ये तुम्हारा पार्शियल मेल्टिंग जो हो रहा है, पार्शियल मेल्टिंग। नाउ अभी क्या है कि मैं अगर तुमको एक रॉक दे दूंगा एंड तुमको बोलूंगा यू जस्ट मेल्ट इट, तो ये तुम क्या करोगे, धीरे धीरे टेम्परेचर दोगे। नाउ दिस टेम्परेचर जो तुम दे रहे हो ये क्या करेगा, छोटा छोटा एक छोटा सा पोर्शन को मेल्ट करेगा, उसके बाद धीरे 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 मेल्ट करके इसको पूरा लिक्विड बना लेगा। ओके, एंड इन बिटवीन, अगर इन बिटवीन जो मेल्ट एंड सॉलिड है उसके बारे में अगर हम कोई भी एक स्टेट में अगर हम तुमको पूछ लेते हैं, देन दैट इज कॉल्ड योर पार्शियल मेल्टिंग। एक मेल्ट हुआ है, एक अनमेल्टेड है। ओके, ये जो पार्शियल मेल्टिंग, ये 2% पार्शियल मेल्टिंग है कि बहुत ज्यादा पार्शियल मेल्टिंग हो रहा है, दैट ऑल्सो एक्सटेंट ऑफ मेल्टिंग दैट ऑल्सो डिटरमाइंस द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ योर मैग्मा। एंड मैग्मा चैम्बर फ्रैक्शनेशन, ये तो बहुत ही ज्यादा, एक ट्रेस एलिमेंट में क्या बताएंगे मैग्मा चैम्बर फ्रैक्शनेशन क्या होता है। तुम्हारा फ्रैक्शनल होता है, इक्विलिब्रियम होता है। देन फाइनली हम आते हैं इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन। इग्नियस रॉक क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, एंड केमिकल कंपोजिशन में भी हो सकता है। जो तुम्हारा क्वालिटेटिव कंपोजिशन में देखो, तुम्हारा जो फाइन ग्रैंड, मीडियम ग्रैंड, कोर्स ग्रैंड, ये होता है तुम्हारा क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटी देखना है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में तुम्हारा ल्यूकोग्रेनाइट में 100 जो भी, लाइक कलर इंडेक्स एक पैरामीटर दे दिए, एक क्वांटिटी दे दी है, ठीक है, ये तुम्हारा ये कॉलर इंडेक्स में देखो। ठीक है, देन इसको बोलेंगे, ये तुम्हारा एक क्वांटिटी हम दे दिए, क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कि देखो कॉलर इंडेक्स इतने से इतना होगा, देन इसको ये बोलेंगे, इतने से इतना होगा, देन ये बोलेंगे। देन फाइनली द केमिकल कंपोजिशन डिपेंडिंग अपॉन वेरियस टाइप्स ऑफ composition, chemical composition, here they have taken the SiO2 composition, and there are some other types of compositions taken also इसमें on the basis of that ultra basic, basic, intermediate and acidic। ठीक है, हो गया, ये तुम्हारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ योर इग्नियस रॉक्स है। तो अभी हम क्या पढ़े, इग्नियस रॉक क्या है, ठीक है, कहाँ से आता है और क्यों हम पढ़ेंगे, और उसका जो मैग्मा है, मैग्मा डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्मा डिफरेंट कंपोजिशन कैसे बनाता है, डिफरेंट इग्नियस रॉक्स इसीलिए हमें मिलेगा, एंड ये जो डिफरेंट इग्नियस रॉक्स है उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड केमिकल कंपोजिशन हम देखे हैं। ठीक है, अभी तक किसी का कहीं पर कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं नाउ व्हेन वी आर कंसिडरिंग, अभी किसी का डाउट है तो पूछ लो। रॉक ग्रुप आज खत्म करना है, बस यही बात है, अभी तक वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है। किसी का डाउट है? अरे कोई नहीं है क्या? वेरी गुड, बता देना है। नाउ व्हेन वी आर कंसिडरिंग रॉक्स, वी आर कंसिडरिंग रॉक्स in this case context, this is igneous rocks. So how do you define a rock? Ananya, can you tell me what is actually a rock? Yes, an aggregate of minerals, but this definition is 80% correct. This should be these are natural aggregates of minerals. Okay, because if I will just give you some quartz, some feldspar, and some actinolite, and I will just put them on the table, then this aggregate you will not call as a mineral, sorry, as a rock. So rock is basically natural aggregate of minerals. ओके, एंड ये जो रॉक का इग्नियस क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो तुमने देखे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एंड केमिकल कंपोजिशन, एंड दिस केमिकल कंपोजिशन, okay, the classification based on chemical composition is widely used, widely used. Okay, yes, you can tell. Okay, ठीक है, you can continue. Yes, yes, very good, nice question, nice observation. So बेसिकली जो डिफरेंस होता है, वोलेटाइल्स नहीं होते इन द सेंस, वहां पे होते हैं बट वेरी फ्यू,
ओके। ना इफ यू से लाइक वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जैसे कि फ्लूइड इंक्लूजन के बारे में बताए, तो यहाँ पे एक छोटा-सा फ्लूइड है जो अभी निकल नहीं पाया, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन जब तुम देखते हो व्हेन द सॉलिडिफिकेशन हैपेंस एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन एटमॉस्फेयर में, ये तुम्हारा सॉलिडिफिकेशन बाहर से होता है, ठीक है? मैग्नेटिक चैम्बर में सॉलिडिफिकेशन अंदर से होता है, न्यूक्लिएशन, क्रिस्टल ग्रोथ, जो भी कॉन्सेप्ट। लेकिन when this magma is maintained very high pressure, if it is present below the surface then it is maintained at a high pressure, है कि नहीं? Now when they are directly coming onto the surface, that pressure is released, isn't it? So यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारा volatile contents हैं जो कि escape कर जाते हैं, एंड कुछ तो हाँ रहेंगे, obviously रहेंगे, no problem। हाँ, डिफरेंस और भी हो सकता है, टेक्सचुरल डिफरेंस भी होगा इफ दे आर जस्ट फॉर्मिंग दिस प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक रॉक्स, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तो ये होगा है तुम्हारा रॉक। नाउ ये जो रॉक का क्लासिफिकेशन करने के लिए दिस केमिकल कंपोजिशन इज वाइडली एक्सेप्टेड, केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि अभी हम देखेंगे जब तुम्हारा क्लासिफिकेशन जो स्कीम जो स्टार्ट हुआ उस टाइम में टेक्सचर को लेके पहले क्लासिफिकेशन किए, उसके बाद उसका फॉर्म को लेके क्लासिफिकेशन किए, उसके बाद लाइक मोलर प्रोपोर्शन परसेंटेज लेके क्लासिफाई किए, एंड यहाँ पर हम देखेंगे दैट आवर QAPF डायग्राम एंड टास्क डायग्राम, देयर inability, okay, how they are not able to just plot all the igneous rocks in that particular diagram, ठीक है? इसके लिए जो भी है डायग्राम, दोज आर नॉट 100%, 100% जो कि बोल नहीं सकते कि यही वाला है, ठीक है? तो लेकिन QAPF एंड टास्क डायग्राम बहुत ही वास्ट में यूज किया जाता है, बट देयर आर सम लाइक अल्ट्रामैफिक रॉक को तुम QAPF में प्लॉट नहीं कर पाओगे, ठीक है? अभी तुम लैम्प्रोफायर प्लॉट नहीं कर पाओगे, मेलिलाइट टाइप ऑफ रॉक्स उसको प्लॉट नहीं कर पाओगे, कार्बोनाटाइट्स उसको प्लॉट नहीं कर पाओगे। तो इन लोगों के लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं, एंड ऑल दिस क्लासिफिकेशन स्कीम्स ना, दे आर related or they are based on the chemical composition, ओके? केमिकल कंपोजिशन, जहां पर देखेंगे तुम्हारा नॉर्मेटिव मिनरल कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे, ठीक है? जो कि इफ नेफेलिन इज प्रेजेंट लेस देन 5%, और इफ इट दिस मिनरल इज प्रेजेंट ग्रेटर देन 12%, और 18% MgO, ये सब कॉन्सेप्ट देखेंगे थोड़ा थोड़ा, और एक एक एग्जाम्पल भी है उसको भी हम देंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर, और नॉर्मेटिव जो है, नॉर्मेटिव एंड मोडाल, ये भी थोड़ा थोड़ा कहीं पर यूज किया जाता है, ठीक है? तो एक रॉक अगर तुम डिफाइन करते हो, देन रॉक इज एन नथिंग बट द नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स, एंड ये जो मिनरल्स हैं उसमें थ्री टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, टाइप मिनरल्स होते हैं, एसेसरी एंड पोस्ट मैग्मेटिक मिनरल्स, दीज आर बेसिकली सेकेंडरी, ओके? पोस्ट मैग्मेटिक दीज आर हाइड्रोथर्मल लाइक वॉइड फिलिंग टाइप ऑफ, और सेकेंडरी मिनरल्स उसको बोलते हैं। तो एसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली दोज आर द की मिनरल्स, ठीक है? उनका कंपोजिशन अभी मैं बोलूंगा कि ग्रेनाइट, ठीक है? ग्रेनाइट होने के लिए क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सो दीज आर एसेंशियल मिनरल्स। टाइप मिनरल्स, their presence does not affect the root name but also allow a rock to be subdivided by qualifiers, जैसे कि अभी हम बोलेंगे ग्रानोडायोराइट, ग्रानाइट, टोनालाइट, लेते हैं टोनालाइट एग्जांपल। अभी ये टोनालाइट में अगर तुम्हारा कुछ परसेंटेज हो जाएगा, क्वार्ज का परसेंटेज इधर उधर हो जाएगा, देन टोनालाइट को भी हम ट्रोंडजेमाइट बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन है, देन ये जो मिनरल है उसको बोलेंगे तुम टाइप मिनरल बोलोगे, ठीक है? टाइप मिनरल हो गया, उसके बाद हो गया तुम्हारा एसेसरी मिनरल। एसेसरी मिनरल क्या बोलते हैं देखो, हाँ, प्लाजियोक्लेज, ओलिगोक्लेज, अंडेशाइन, ट्रोंडजेमाइट, सिन प्लाजियोग्रानाइट, और छोड़ दो, वही वाला टाइप मिनरल है। एसेसरी मिनरल जो है तुम्हारा माइनर अमाउंट में होता है, पोस्ट मैग्मेटिक जो तुम्हारा हाइड्रोथर्मल, दे लाइक जियोलाइट, एंड सेकेंडरी मिनरल्स जो वॉइड फिलिंग मिनरल्स होते हैं, दोज आर पोस्ट मैग्मेटिक। एंड यहाँ पर हम आते हैं डायरेक्टली रॉक ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है? रॉक ग्रुप्स को देखेंगे, एंड रॉक ग्रुप को खत्म करने के बाद हम डिफरेंट मैग्मा सीरीज देखेंगे, ठीक है? मैग्मा सीरीज के बारे में बस एक डायग्राम दिखा दूंगा, एंड नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट टू डिफाइन योर ओर जियोलॉजी पार्ट, ठीक है? इग्नियस ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस में इसको हम को रिलेट करेंगे,
दैट्स वाई मैग्मा सीरीज एंड डिफरेंट रॉक ग्रुप्स कौन कौन सा मिनरल इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट फॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, या फिर दे आर पोटेंशियल ऑफ, वो भी हम देखेंगे। तो पहले ये है तुम्हारा क्यूएपीएफ डायग्राम, सबको पता है, ग्रानाइट एंड ग्रानोडायोराइट, देन गैब्रो एंड गैब्रोइक रॉक्स, अनऑर्थोसाइट लूनार बासोल्ट में अनऑर्थोसाइट्स मिलता है कि नहीं, लूनार बासोल्ट में अनऑर्थोसाइट्स मिलता है। अल्कालाइन रॉक्स, अल्ट्रामैफिक रॉक्स में तुम्हारा एलएमआई आ सकता है, लेड मैफिक इंट्रूजन। ओशियन फ्लोर में अल्ट्रामैफिक, जो तुम्हारा पेडोटाइट जो ये तुम्हारा है ओरोजेनिक जोन में हो सकता है, पेडोटिटिक कोमाटियाइट, पिक्राइट एंड पिक्रोबासल्ट, अल्ट्रामैफिक जेनोलिथ्स। ये तुम्हारा अल्ट्रामैफिक रॉक का ये भी एक डिफरेंट रॉक ग्रुप हो गया। लाम्प्रोफायर एंड लाम्प्राइट, जिसमें ओरेंजाइट ये सब चीज आता है। लाम्प्रोफायर दिस डायमंड बियरिंग किम्बरलाइट, लाम्प्रोफायर में, हाँ लाम्प्रोफायर एंड ये तुम्हारा किम्बरलाइट है, ठीक है। लाम्प्रोफायर एंड किम्बरलाइट में डिफरेंस हम देखेंगे, उसमें वोलाटाइल कंटेंट का एंड कार्बन का कंटेंट कैसे डिफरेंट होता है। कार्बोनाटाइट, जिसमें तुम्हारा ग्रेटर देन 50% ऑफ योर कार्बोनेट मिनरल्स अगर होता है, देन उसको कार्बोनाटाइट्स करेंगे। देन सियानाइट एंड ट्रकाइट, बासोल्ट एंड फाइनली एंड, ठीक है। तो कौन कौन सा ऐसे हमारे पास प्लॉट्स हैं या फिर क्लासिफिकेशन टेबल्स हैं जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इन दिस केस। तो क्या क्या ऐसा है जो हम यूज करते हैं, क्यूएपीएफ डायग्राम ऑल ऑफ यू नो, है कि नहीं, और क्या क्या डायग्राम हो सकता है, ठीक है। क्यूएपीएफ में हम ग्रेनाइट्स एंड ग्रानोडायोराइट्स को कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। गाब्रो को भी कर सकते हैं शायद। मेरा एक मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट था, एक दिन वो बीएससी में वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो एक दिन मुझे फ़ोन कर रहा है, "सर ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, आप मुझे बताइए गबरू क्या होता है?" हम बोल रहे हैं, "क्या गबरू? अबे वो गबरू नहीं है, गब्बर इज़ बैक वो मूवी है।" "नहीं सर, एक प्रैक्टिकल में है, कल प्रैक्टिकल है, आप बताइए गबरू क्या होता है?" मैंने कहा, "गबरू? अबे गाब्रो है गाब्रो।" तो वहां से गाब्रो गबरू जो भी है कॉन्सेप्ट वहां से आ गया। देन ये जो गबरू या फिर गाब्रो है, इसको भी हम क्यूएपीएम में प्लॉट कर सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, वेरी गुड। देन उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन उसका है, जैसे कि तुम्हारा कलर इंडेक्स देखोगे या फिर तुम्हारा मैफिक मिनरल्स का कॉम्पोजिशन देखोगे, ठीक है। तो वाला उसमें तो तुम अगर देखोगे डायोराइट गैब्रो एंड तुम्हारा डायोराइट गैब्रो, इन दोनों में कंफ्यूजन आएगा फिर, है कि नहीं। लेकिन इसको हम कर सकते हैं, अभी अभी के लिए हम कर सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। चलो सोच ही लेते हैं, ठीक है, कि नहीं सोचने दोगे, ये बताओ, सोच लेते हैं ना। ओके, वेरी गुड। उसके बाद अल्कालाइन रॉक को हम यूज कर सकते हैं क्या क्यूएपीएफ डायग्राम में। क्यूएपीएफ डायग्राम में हम इसको कर सकते हैं क्या, बताओ। नहीं, तो क्या करेंगे फिर, हाँ, टास्क में अल्कालाइन को करेंगे। चलो ठीक है, अल्कालाइन के लिए हम अलग सा यूज कर लेंगे। अल्ट्रामैफिक के लिए हम क्यूएपीएफ यूज कर सकते हैं क्या। अल्ट्रामैफिक के लिए क्यूएपीएफ हम डायग्राम यूज कर सकते हैं क्या। तो अल्ट्रामैफिक के लिए क्या करेंगे फिर। चलो ठीक है, देख लेते हैं अल्ट्रामैफिक के लिए भी हम। ओके, इसमें प्लाजिकुलेज नहीं होता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं, नो प्रॉब्लम, जो भी है। लाम्प्रोफायर यूज कर सकते हैं, लाम्प्रोफायर किम्बरलाइट कार्बोनाटाइट, इसके लिए कर नहीं सकते शायद। चलो ठीक है, हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं, ये तुम्हारा क्यूएपीएफ डायग्राम है, एक तुम्हारा प्लूटोनिक है, एक वोल्केनिक है। तो ये बताओ, ये जो ये है ये क्या है, क्यूएपीएफ डायग्राम, दिस इज फॉर प्लूटोनिक रॉक्स एंड दिस इज फॉर वोल्केनिक रॉक्स,
ठीक है। एंड हमारे पास और एक डायग्राम है, टास डायग्राम, TAS। दिस इज टोटल अल्कली सिलिका, टोटल अल्कली सिलिका। ये जो टोटल अल्कली सिलिका, ये भी हमारा यूज होता है किसमें, वोल्केनिक रॉक को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये जो वोल्केनिक रॉक का क्लासिफिकेशन डायमंड डायग्राम है और ये जो टास डायग्राम है, तो इन दोनों ही यूज किया जाता है वोल्केनिक के लिए। तो इसमें क्या लाकुना रह गया और क्या प्रॉब्लम हो गया जिसके लिए हमें टास्क का मतलब लेना पड़ा? एनी आइडिया? बताओ बताओ, जो जिसको पता है बताओ। यस, वेरी गुड आंसर, नाइस आंसर। चलो अच्छा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक जो है, इसको कभी कभी एक टर्मिनोलॉजी आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट एक टर्म यूज करते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट का रायोलाइट होता है, इसका ये होता है। ये जो इक्विवेलेंट जो बोलते हैं, इक्विवेलेंट इसीलिए बोलते हैं दैट दे हैव सेम केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन इन लोगों का सेम होगा, बट टेक्सचुरली दे विल बी डिफरेंट, टेक्सचुरली दे विल बी डिफरेंट। ऑल ऑफ यू जस्ट सी, ये जो डायग्राम है इसको दिमाग में हमेशा रखना है। यहाँ पर तुम्हारा ग्रेनाइट है, ठीक है, ग्रेनाइट है। अभी और एक क्वेश्चन, अभी तुम्हारे पास ये जो ग्रेनाइट है, इफ दिस ग्रेनाइट इज कंटेनिंग ऑर्थोपाइरोक्सिन और हाइपोस्थिन, ये हाइपोस्थिन एक ऑर्थोपाइरोक्सिन ही है ना। इफ दिस ग्रेनाइट इज कंटेनिंग हाइपोस्थिन, देन उस ग्रेनाइट को क्या बोलेंगे? बताओ, एक अच्छा सा नाम है, इंटरेस्टिंग बढ़िया नाम है। वेरी गुड, इट इज कॉल्ड आर चार्नोकाइट्स। एंड ये जो चार्नोकाइट है, वेरी पिच ब्लैक ऑयली टाइप ऑफ रॉक, एंड दिस रॉक इज वेरी गुड फॉर मोनूमेंट्स। मोनूमेंट बनाओगे तो क्या दिखेगा? जॉब चार्नोक इसको आइडेंटिफाई किए थे, इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। दिस चार्नोकाइट लाइन क्या होता है, ओपीएक्स आइसोक्राइट, दिस थिंग्स, जो भी चार्नोकिटाइजेशन प्रोसेस देखेंगे और कुछ कुछ देखेंगे। तो ये जो चार्नोकाइट्स है, इसके लिए अलग सा एक क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है जो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लो, ग्रेनाइट में अगर इफ दिस ग्रेनाइट इज कंटेनिंग हाइपोस्टिन, देन दैट रॉक विल बी कॉल्ड चार्नोकाइट्स। देन यहाँ पर आ जाता है तुम्हारा ग्रानोडायोराइट, देन टोनालाइट। एंड ये टोनालाइट में इसका कुछ परसेंटेज है, यहाँ पर तुम्हारा एक ट्रोंजियमाइट करके एक रॉक आता है, ठीक है। एंड ये तुम्हारा क्वार्ट्ज ग्रानिटॉइड। एंड ऑल दिस रॉक्स, ग्रानाइट, ग्रानोडायोराइट, यहां तक टोनालाइट, ये है तुम्हारा एक रॉक ग्रुप, उसको बोलते हैं ग्रानिटॉइड्स, ठीक है। एंड ऑल ऑफ यू नो, ये जो ग्रानाइट्स हैं, दीज आर फेल्सिक इन कंपोजिशन। एंड ग्रानाइट, ग्रानिटॉइड्स जो हैं, फेल्सिक रॉक जो होते हैं, वो बहुत ही सारे, ठीक है। ग्रानिटॉइड्स, ग्रानाइट्स ये जब हो गए, ये तुम्हारा मे बी सिडेरोफाइल, हाँ, सिडेरोफाइल्स को बहुत ज्यादा अकोमोडेट हो जाएंगे शायद। यहाँ पर देखेंगे कॉपर मोलिब्डेनम डिपॉजिट्स आ जाएगा, ठीक है। फेल्सिक रॉक में तुम्हारा यूरानियम, तो यूरानियम डिपॉजिट्स भी आएगा, ठीक है। ये सब चीज देखेंगे और जियोलॉजी बेसिस में, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा पूछता है, ये है तुम्हारा मोन्जोनाइट, क्वार्ट्ज मोन्जोनाइट, मोन्जोनाइट एंड सियनाइट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को थोड़ा याद रखना है। मोन्जोनाइट है, सियनाइट है, ये डायोराइट। ये देखो फोइडोलाइट, ये एफ जो है, दिस इज कंटेनिंग ओनली फेल्ड्सपाथोइड और फोइड्स, इसको फोइड्स और फेल्ड्सपाथोइड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें तुम्हारा नेफेलिन, सोडालाइट और एक कौन सा मिनरल आता है, ठीक है। दीज आर फेल्ड्सपाथोइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ वेरी गुड। यहाँ पर देखो फोनोलाइट है, इसका इक्विवेलेंट,
देखो यहाँ पर टेफराइट है, फोइडाइट्स, ये भी फोइडाइट्स, ये भी फोइडाइट्स। लैक्टाइट देखो ये एक इंपॉर्टेंट रॉक है। ट्रकाइट्स देख रहे हो, ट्रकाइट्स, ट्रकाइट्स एंड ट्रैकिलाइट्स। ट्रकाइट्स अलग है, ट्रैकिलाइट अलग है, ठीक है। स्यूडोटैकिलाइट जो बोलते हैं, दोज आर द पालेओसेस्मिक इंडिकेटर्स, पालेओसेस्मोटेक्टोनिक इंडिकेटर्स बोलते हैं स्यूडोटैकिलाइट्स को, ठीक है, जो तुम्हारा सीओर जोन में आते हैं, ठीक है। माइलोनाइट्स, अल्ट्रामाइलोनाइट्स, ये ट्रकाइट्स और फिर ट्रैकिलाइट्स जो है ये तुम्हारा पालियोसेस्मिक डायरेक्शन और इंडिकेटर बोलते हैं उन लोगों को, ठीक है। ये देखो लैटाइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लैटाइट, ट्रकाइट, ठीक है, लैटाइट। अंडेसाइड बासल्ट तो ये सबको पता ही, अंडेसाइड बासल्ट, फॉइड ब्योरिंग अंडेसाइड बासल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें देखना है ट्रकाइट देखना है, लैटाइट देखना है। लैटाइट इज इंपॉर्टेंट, अंडेसाइड बासल्ट देखेंगे, क्योंकि अंडे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम तुमको बताते हैं। अभी अभी देखो ग्रानाइट है एक, रायोलाइट है, ग्रानोडायोराइट, डाकाइट। देन यहाँ पे तुम्हारा बासोल्ट गाब्रो है, डायोराइट गाब्रो, डायोराइट गाब्रो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा अंडेसाइड बासोल्ट। तो अभी हमारे पास जो प्राइमरी मैग्मा है वो है बासोल्ट, ठीक है। और बासोल्टिक का तुम अगर इवोल्यूशन देखोगे, बासोल्ट, बासोल्टिक अंडेसाइट, अंडेसाइट, डाकाइट, रायोलाइट, ये तुम्हारा बासोल्टिक ट्रेंड है टोटल, ठीक है। जो टॉर्नरी डायग्राम हम पढ़ेंगे उसमें ये देखेंगे, बासोल्टिक इवोल्यूशन ट्रेंड को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमें मैक्सिमम बासोल्ट्स मिलते हैं, रायोलाइट भी मिलते हैं, और तुम्हारा मैफिक एंड फेल्सिक, ये दोनों रोग बहुत ही ज्यादा, अभी देखोगे कहीं पर भी जाओ ग्रानिटिक प्लूटोनिज्म होता है, बाथोलिट जो फॉर्म होता है वो ग्रानिटिक प्लूटोनिज्म होगा, ठीक है। डोलेराइट डाइक होगा, ठीक है, रायोलिटिक कहीं पर होगा, अंडेसिटिक डाकिटिक होगा, बासोल्टिक होगा। तो ये सब जो ये इतना जो मैग्मेटिक सीरीज है ना, ये हमारे पास इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, मतलब उनका जो एसोसिएशन है सरफेस के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा है। तो वो उनमें से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हम किए हैं, जैसे कि ग्रेनाइट्स में इतना एक्सपेरिमेंट देखोगे, इतना उसका वर्साटिलिटी तुम देखोगे, कभी कार्बोनाटाइट में इतना नहीं मिलेगा तुम्हें। अभी तुम ग्रेनाइट के पीछे चले जाओ, ग्रेनाइट में देखो एक आ गया तुम्हारा चार्नोकाइट्स आ गया, ग्रेनाइट में चले जाओ सीमा आ जाएगा, एस टाइप, आई टाइप, एम टाइप, ए टाइप। अभी एस टाइप ग्रानाइट में चले जाओ, आई टाइप ग्रानाइट में चले जाओ ना, तुम्हारा जो एस टाइप ग्रानाइट है वो तुम्हारा एस एन डब्ल्यू टाइप इट्रियम, ये एस एन डब्ल्यू टाइप तुम्हारा डिपॉजिट दिखाएगा, ये तुम्हारा सिन सेडिमेंटरी और सेडिमेंटरी प्रोटोलिथ से आएगा। और आई टाइप जो ग्रानाइट है ये तुम्हारा इग्नियस प्रोटोलिथ से आएगा और मेटा सेडिमेंटरी वो इसमें से आएगा। ये जो तुम्हारा है आई टाइप, ये तुम्हारा पोर्फिरिक कॉपर मोलिब्डेनम ये वाला डिपॉजिट दिखाएगा, ठीक है। ये देखो इंटरेस्टिंग, तो डिफरेंट ग्रेनाइट के ऊपर बहुत कुछ चीज हो गया है। बासोल्ट के ऊपर जैसे तुम देखोगे, बासोल्ट के ऊपर क्या क्या है, बासोल्ट में तुम्हारा बासोल्टिक टेट्राहेड्रा है, बासोल्ट टेट्राहेड्रोन है, जिसमें तुम ओलिविन थोलियाइट, थोलियाइट, सब अल्काली, तो ये सब अल्काली, ये सब चीज तुम डिफरेंट डिफरेंट माग्मा सीरीज वहां पर तुम देखने को तुम्हें मिलेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्या है, लाटाइट है, रायोलाइट है, डाकाइट है, फोनोलाइट है, फोनोलाइट छोड़ दो, ग्रानाइट है, एंड गाब्रो बासोल्ट, बासोल्टिक गाब्रो जो भी है। एंड अल्ट्रामैफिक के लिए देखो तुम्हारा पायरोक्सिन, ओलिविन, ओलिविन, पायरोक्सिन, प्लाज, ये तुम्हारा अल्ट्रामैफिक, ये दोनों अल्ट्रामैफिक के लिए। ये बी है तुम्हारा गैब्रोइक, ठीक है, रॉक ये सॉरी, ये है तुम्हारा गैब्रोइक रॉक, ठीक है, जिसमें हम यूज करते हैं ओलिविन, पायरोक्सिन एंड प्लाजियोक्लेज। एंड अल्ट्रामैफिक के लिए यूज करते हैं ओलिविन, ओपीएक्स, सीपीएक्स। उसको अल्ट्रामैफिक क्यों बोलते हैं, इसमें देखते हैं। उसको अल्ट्रामैफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा मैफिक मिनरल्स हैं। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट इन ओलिविन एंड पायरोक्सिन, ओलिविन में इसमें भी तुम्हारा एम जी एफ ई, ऊपर क्या होता है, सी होता है, सी होता है ना। हाँ देखो यहाँ पर ये देखो MgFe, दीज आर ऑल मैग्ने फेरो मैग्नेशियन, फेरो मीन्स आयनोर, मैग्नेशियन, फेरो मैग्नेशियन, Fe के लिए फेरो, Mg के लिए मैग्नेशियन, फेरो मैग्नेशियन, ठीक है। यही तुम्हारा अल्ट्रामैफिक, ये तुम्हारा कंटेंट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है देन उसको अल्ट्रामैफिक रॉक बोलते हैं। एंड अल्ट्रामैफिक में ये देखो पेरिडोटाइट्स एंड पायरोक्सिनाइट्स। पेरिडोटाइट्स में क्या आता है, HW आता है, ये H में हार्ट्सबर्गाइट, W में वेयरलाइट, बीच में तुम्हारा लहरजोलाइट आता है, ठीक है। हार्ट्सबर्गाइट, वेयरलाइट, सॉरी हाँ वेयरलाइट, नीचे है तुम्हारा वेबस्टराइट। ये तीन डायग्राम ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है? लेहरजोलाइट, ठीक है? लेहरजोलाइट, ये तुम्हारा पेडोटाइट, पायरोक्सिनाइट, पायरोक्सिनाइट तो छोड़ दो, ओलिविन ओब्स्टराइट जो भी है, ये तो नीचे ओब्स्टराइट है। ये हार्ट्सबर्गाइट, लेहरजोलाइट एंड ओवरलाइट, ये तुम्हारा पेरिडोटाइट है। ये हम पढ़ेंगे जब डिफरेंट मैग्मा सीरीज जब देखेंगे, तो मेल्टिंग ऑफ योर लेहरजोलाइट, मेंटल लेहरजोलाइट, उसको भी हम देखेंगे। हम अभी लेहरजोलाइट मेल्ट होगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, कौन सा रॉक बनाएगा, कौन सा मैग्मा सीरीज बनाएगा। एंड ये हो गया तुम्हारा गैब्रोइक रॉक्स, गैब्रो नोराइट एंड गैब्रो, ये गैब्रो एंड ट्रोक्टोलाइट, ये है तुम्हारा ट्रोक्टोलाइट, ये है तुम्हारा गैब्रो, दिस इज ओलिविन गैब्रो। पूरा 90% रहेगा तो अनऑर्थोसाइट। ओलिविन ये तुम्हारा ये जो रॉक बनाएगा उसको बोलेंगे ड्यूनाइट, ठीक है। पायरोक्सिन यहाँ पर जो बनाएगा उसको बोलेंगे पायरोक्सिनाइट, ठीक है। इतना खत्म हो गया। हाँ, यस, हाँ हाँ हाँ, उसमें अगर ये यहाँ पर सिर्फ पायरोक्सिन दिया गया है, सिर्फ पायरोक्सिन, तो ये जो गैब्रो दिया गया है, तो इसको अगर इफ ये पायरोक्सिन को हम ओपीएक्स एंड सीपीएक्स में अगर चेंज कर लेंगे, प्लाजियोक्लेज ओपीएक्स सीपीएक्स, देन वहां पे तुम्हारा एक हो जाएगा नोराइट, एक हो जाएगा गैब्रो और गबरू, ठीक है। ठीक है, हाँ। जो तुम्हारा डायोराइट एंड गाब्रो के बीच में तुम्हारा अनोर्थाइट कंटेंट, जैसे कि डायोराइट में लेस, यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा क्या है, डायोराइट एंड गाब्रो, डायोराइट एंड गाब्रो, तो डायोराइट में जो तुम्हारा अनोर्थाइट का परसेंटेज है लेस देन अनोर्थाइट 50, ये ग्रेटर देन अनोर्थाइट 50, ठीक है। और इफ यू सी द कलर इंडेक्स, डायोराइट का कलर इंडेक्स लेस देन 40 होगा, इसका ग्रेटर देन, ये थोड़ा डाटा है, थोड़ा देख लो कलर इंडेक्स, ठीक है। और क्या है, मोनाजाइट लाटाइट है, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट ग्रानाइट का रायोलाइट है, अभी ट्रकाइट का सियानाइट है, जो भी है ये सब देख लेना है, ठीक है। इसमें नोराइट, डायोराइट, गाब्रो, अनोर्थाइट, एक ही केस में ये जो क्यूएपीएफ है, ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या आ जाता है, तुम्हारा नोराइट भी आता है, डायोराइट भी आता है, गाब्रो भी आता है, अनोर्थोसाइट भी आता है। अनोर्थोसाइट में कौन सा प्लाजियोक्लेज ज्यादा होता है, कोई बता सकता है? वेरी गुड। लाब्राडोराइट को हम यूज करते हैं जो रिंग बनाने के लिए, येलो कलर का जो रिंग जो पहनते हैं ना, तो उसमें लाब्राडोराइट, लाब्राडोराइट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ लाब्राडोराइट का। इसका यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए ही उसको रिंग में यूज किया जाता है, बताओ। ओके, ठीक है, ये लैब्राडोरेट जो है ये तुम्हारा प्ले ऑफ कलर दिखाता है, ठीक है, प्ले ऑफ कलर दिखाता है, एंड इसी के लिए ही उसको यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। तो फाइनली इतना हो गया, तो इसमें क्या बोलेंगे, अल्कालाइन रॉक के लिए अलग सा है, अनॉर्थोसाइट ये तुम्हारा लूनर बासोल्ट में बहुत ज्यादा मिलता है, अल्ट्रामेफिक के लिए हम देख लिए, एक होता है अल्ट्रामेफिक के लिए तुम्हारा ओलिविन, ओपीएक्स एंड सीपीएक्स यूज करते हैं। एंड अल्ट्रामेफिक में क्या क्या आता है, एक आता है तुम्हारा पेरिडोटाइट, और दूसरा क्या है, पायरोक्सिनाइट्स, ठीक है। एंड लाम्प्रोफायर लाम्प्रोइट, इसको भी हम, ये भी लाम्प्रोफायर लाम्प्रोइट, ये भी तुम्हारा वन टाइप ऑफ एक वोल्केनिक रॉक ही है, ठीक है। वोल्केनिक रॉक है, पोर्फिरिटिक टेक्सचर, ये जो टेक्सचर होगा पोर्फिरिटिक होगा, ठीक है। तो इसको भी हम टास्क में प्लॉट करके देखेंगे। किम्बरलाइट है, कार्बोनाइट, कार्बोनेटेड सबको पता है, ग्रेटर देन 50% अभी तुम्हारा कार्बोनेट मिनरल्स अगर है, देन उसको कार्बोनाइट क्लासिफिकेशन करेंगे। सियानाइट, ट्रकाइट, बासोल्ट, बासोल्ट के लिए बासोल्ट टेट्राहेड्रॉन देखेंगे। अंडेसाइट इंटरमीडिएट, अंडेसाइट इज इंटरमीडिएट। सो आज का क्लास का यही तुम्हारा समरी है, ठीक है। अभी हाँ, और एक चीज, वोल्कानो से जो निकल रहा है ये तुम्हारा पायरोक्लास्टिक रॉक है, पायरोक्लास्टिक के लिए हम टास भी नहीं यूज कर सकते हैं। सो इफ इट इज अ पायरोक्लास्टिक रॉक, okay, is it a pyroclastic rock, first question. If it is, then use the pyroclastic classification, okay. Now, does the rock have more than 50% modal carbonate minerals? If greater than 50% carbonate mineral, then use the carbonatite classification, ठीक है। एंड इफ द रॉक इज अल्ट्रामेफिक एंड कंटेन्स मोर देन 10% ऑफ मोडल मेलिलाइट, देन इट विल बी मेलिलाइट रॉक क्लासिफिकेशन, उसमें यूज करेंगे। बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, लेकिन इसका अलग ही क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। अभी ये मुझे बताओ, ये मेलिलाइट क्या है,
ये मेलिलाइट एक मिनरल है, सबको पता है, हम पढ़ भी चुके हैं, यही क्वेश्चन तुम बता नहीं पाओगे। बताओ मेलिलाइट कौन से सिलिकेट में आता है, पहले बताओ। कोई बोल नहीं पाएगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा HW है। लास्ट वाला मिनरोलॉजी का वीडियो पूरा दिखाओ, देखो इतना डिटेल में पढ़ाते पढ़ाते हैं फिर भी भूल जाते हो, ठीक है। और इफ इट इज ए लैम्प्रोफेरिक टाइप ऑफ रॉक, देन उसका एक लैम्प्रोफायर क्लासिफिकेशन है, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। इफ ए रॉक इज ऑर्थोपायरोक्सिन बियरिंग, देन चार्नोकाइट, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट में तुम्हारा हाइपोक्सिन रह गया, देन उसको चार्नोकाइटिक क्लासिफिकेशन है। हम सिर्फ बेसिकली ओनली चार्नोकाइट के बारे में ही जानते हैं, लेकिन चार्नोकाइट का भी एक अलग सा ही क्लासिफिकेशन है, जो हमें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इफ द रॉक इज प्लूटोनिक, देन यूज द QAPF क्लासिफिकेशन, प्लूटोनिक रॉक, ठीक है। एंड इफ द रॉक इज वोल्केनिक एंड मिनरल मोड कैन बी डिटरमाइंड, अभी मिनरल का जो मोड है वो अगर डिटरमाइन किया जा सकता है, देन QAPF यूज करो। अगर उसका मिनरल मोड क्लासिफाई डिटरमाइन कर नहीं पा रहे हो, देन उसको टास्क में यूज करो, जो कि अनन्या ने बताया था। ये तुम्हारा केमिकल क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम्हारा Na2O प्लस ऑफ K2O वर्सेस SiO2 यूज़ करते हैं। दिस इज टोटल अल्काली वर्सेस सिलिका। इसमें क्या होता है, उसका जो मिनरल प्रेजेंट जो होते हैं, उसका मोडल कंपोजिशन हम डिटरमिन नहीं कर पाते हैं। इफ इट इज नॉट डिटरमिन, देन यू जस्ट गो टू द टास्क डायग्राम, एंड इफ इट इज डिटरमिन, देन यू कैन जस्ट गो विद दैट QAPF क्लासिफिकेशन। ओके, सो ये है तुम्हारा प्लूटोनिक QPF क्लासिफिकेशन, सबको पता है क्या क्या है। ग्रानाइट, सियानो मोन्जोग्रानाइट क्या है। मोन्जोनाइट इज इंपॉर्टेंट, हमेशा मैं बोल रहा हूँ, मोन्जोनाइट इंपॉर्टेंट, सियानाइट इंपॉर्टेंट, सियानाइट इज इंपॉर्टेंट, सियानाइट इज इंपॉर्टेंट, मोन्जोनाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर डायोराइट, गाब्रो, अनॉर्थोसाइट ये इंपॉर्टेंट है। एंड फोइडाइट छोड़ दो, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट, अल्काली फेल्सपार नहीं छोड़ दो, ये तो क्वार्जोलाइट है, जो भी है इतना। एंड ग्रानाइट, ये ग्रानोडायोरेट, ग्रानोडायोरेट, टोनालाइट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा QAPF का QAP ऊपर वाला है। एंड ये तुम्हारा मैफिक रॉक्स के लिए यूज किया जाता है, OPX CPX अनॉर्थाइट, ठीक है। यह तुम्हारा गैब्रो है, ये तुम्हारा नोराइट है। इफ इट इज कॉन्टेनिंग OPX अनॉर्थ अनॉर्थोसाइड, दिस मीन्स प्लाजियोक्लेज। प्लाजियोक्लेज के साथ अभी जो देवाशीष जो पूछ रहे थे तुम, हाँ, प्लाजियोक्लेज के साथ इफ इट इज OPX, देन दैट विल बी नोराइट, एंड इफ इट इज CPX, दैट विल बी गैब्रो, ठीक है, दैट विल बी गैब्रो। एंड बीच में जो होगा उसको गैब्रोनोराइट बोलेंगे। तो इसमें देखो, ये तुम्हारा क्वार्जोलाइट है, ग्रेटर देन 90% ऑफ योर क्वार्ज रहेगा। ये देखो ग्रेजिन, ग्रेजन टाइप, इसमें SnW डिपॉजिट्स आएंगे, ग्रेजन, ठीक है। देगाना ग्रानाइट में जो तुम्हारा टिन टंगस्टन डिपॉजिट आता है, ये तुम्हारा ग्रेजन टाइप डिपॉजिट्स है, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ योर मेटासोमैटिज्म आ जाएगा, ग्रेनिटिक मेटासोमैटिज्म कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। ग्रानाइट में सियानोग्रानाइट, मोन्जोग्रानाइट, ग्रानोडायोराइट, टोनालाइट। टोनालाइट में इंपॉर्टेंट देखो, बायोटाइट एंड हॉर्नब्लेंड है। अभी तुम जब ग्रानाइट देखते हो, ग्रानाइट में तुम्हारा क्वार्ट्ज प्लस ऑफ फेल्डस्पार के साथ जो मेजर एसेसरी मिनरल के हिसाब से बायोटाइट एंड हॉर्नब्लेंड रहते हैं, इंपॉर्टेंट, ये मार्क करो, बायोटाइट एंड हॉर्नब्लेंड रहते हैं। जब when we'll just go to S टाइप I टाइप, बेसिकली सीमा जो है, ठीक है, हमारे पास जो सीमा क्लासिफिकेशन है ग्रेनाइट्स का, उसमें हम बेसिकली C को ही देखेंगे, S एंड I, और ईज को देखेंगे, I टाइप एंड S टाइप। तो ये जो S टाइप एंड I टाइप, इसमें नॉर्मेटिव कोरुंडम, नॉर्मेटिव तुम्हारा हॉर्नब्लेंड, ये बहुत मतलब कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा फीचर्स होगा डिस्टिंग्विश करने के लिए आई टाइप एंड एस टाइप को, ठीक है। ये तुम्हारा के फेल्ड्सबर्ग ग्रेनाइट, सिएनाइट इज इंपॉर्टेंट, यू कैन सी बायोटाइट हॉर्नब्लेंड के साथ पायरोक्सिन भी रहेगा, क्वार्ट्ज मोन्जोनाइट एंड सिएनाइट, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना है। क्वार्ट्ज डायोराइट, गाब्रो में देखो तुम्हारा CPX ग्रेटर देन OPX। जब तुम बासोल्ट बोलते हो ना, बासोल्ट बासोल्ट के लिए तुम्हारा CPX बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CPX रहना ही जरूरी है, CPX बहुत ज्यादा होगा। एंड इफ यू सी द क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस, द बावेंस रिएक्शन सीरीज, तो पहले कौन सा क्रिस्टलाइज होता है, पहले शायद CPX क्रिस्टलाइज होता है कि नहीं, क्यों OPX होता है, अच्छा सॉरी, पहले OPX होता है, उसके बाद ही CPX होता है। तो बासोल्ट के लिए तो तुम्हारा CPX इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बस यही तुम याद रखो, और क्या ही बताएंगे। मेलिलाइट देखो, यहाँ पे MEL लिखा हुआ है, मेलिलाइट कहाँ पर है, ढूंढो थोड़ा, MEL कहाँ पर है, नीचे होगा शायद, ठीक है, ये तुम्हारा नीचे वाला है। एंड अनदर थिंग, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज याद रखना है, अगर एक सिस्टम में क्वार्ज एंड अल्काली फेल्ड्सपार है,
तो इसमें जो रॉक रहेगा, इसमें जो टेक्सचर बनेगा, किस टाइप का टेक्सचर बनेगा? तुम्हारा ये अल्काली फेल्ड्सपार और ये तुम्हारा प्लाजियोक्लेज है, इसमें कैसा टेक्सचर बनेगा एंड इसमें कैसा टेक्सचर बनेगा इफ इट इज कंटेनिंग क्वार्ज एंड प्लाजियोक्लेज। ठीक है, ये तुम्हारा अल्काली फेल्ड्सपार मतलब ऑर्थोक्लेज है कि नहीं, ऑर्थोक्लेज। और ये जो प्लाजियोक्लेज है, प्लाजियोक्लेज में यहाँ से तुम्हारा अल्बाइट टू अनोर्थाइट है। तो ये क्यूएपी का एक ड्रॉबैक है दैट यहाँ पे जो प्लाजियोक्लेज दे रहा है इट इज नॉट कन्फर्मिंग एक्चुअल द स्टेट, मतलब पोजीशन। अल्बाइट कहाँ पे रहेगा, अभी यहाँ बीच में रहेगा, यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, या फिर इस पॉइंट में रहेगा। ये एक क्यूएपी का एक्चुअली एक लैकुना है। ठीक है, चलो छोड़ो जो भी है, अभी हमको इसमें अगर अल्बाइट कंसिडर कर लेते हैं, अल्बाइट एंड ऑर्थोक्लेज में हमारा पोर्थाइट एंटीपोर्थाइट टेक्सचर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ग्रानाइट, ग्रानाइट में ये तुम्हारा क्या है, क्वार्ज, क्वार्ज एंड अल्काली फेल्ड्सपार, क्वार्ज एंड अल्काली फेल्ड्सपार में ये तुम्हारा कौन सा टेक्सचर मिलेगा यहाँ पे? कौन सा टेक्सचर? ग्रानोफेरिक, ग्राफिक, ग्राफिक टेक्सचर इसको बोलते हैं। हाँ, ग्राफिक, ग्रानोफेरिक दोनों भी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर तुम्हारा जो रिलेटिव साइज होगा उसके बेसिस में उसको ग्राफिक बोल सकते हो, ग्रानोफेरिक भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ये तुम्हारा नीचे वाला है, इसमें तुम्हारा फोइडेलाइट, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फोइडेलाइट इसको भी देख लेना, फोइड सियानाइट। और ये तुम्हारा अल्ट्रामैफिक, अल्ट्रामैफिक में मैफिक मिनरल्स ग्रेटर देन 90% होते हैं, अल्ट्रामैफिक रॉक में मैफिक रॉक ग्रेटर देन 90% होते हैं। ये तुम्हारा प्योर ड्यूनाइट, ये तुम्हारा मोनोमिनरलिक रॉक बोलते हैं, मोनोमिनरलिक रॉक। पेरिडोट इसका जेम वेराइटी है, पेरिडोट ओलिविन का जेम वेराइटी है। ये तुम्हारा सीपीएक्स ओपीएक्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेयर जो देख रहे हो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तुम लोअर मेंटल का कॉम्पोजिशन तुम देखोगे यही आएगा, क्योंकि यही वाला ये जो लेहर जो लाइट है ना, यही तुम्हारा मेल्ट होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्मेटिक सीरीज दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो CRM लिखा हुआ है, CRM, CRM देख रहे हो, CRM, जूम कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर CRM लिखा हुआ है। देखो क्रोमाइट, CRM का मतलब क्या है, क्रोमाइट। अल्ट्रामैफिक रॉक इज एक्चुअली ए गुड होस्ट फॉर क्रोमाइट डिपॉजिट्स। ठीक है, पोडिफॉर्म, ये तुम्हारा प्लूटोनिक, सॉरी प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक इक्विवेलेंट है। और ये तुम्हारा टास्क डायग्राम है, टास्क डायग्राम। और ये टास्क डायग्राम में हम हर एक चीज को प्लॉट करके देखेंगे, कोमाटियाइट हो जाए जो भी हो जाए इसके ऊपर। ये देखो, ये देख रहे हो पिक्रो बासल्ट, अल्काली बासल्ट, देखो सॉव अल्काली बासल्ट, बासल्ट, बासल्टिक अंडेसाइट, अंडेसाइट, डकाइट, सॉव अल्काली, देन अल्काली रायोलाइट। ओके, सॉव अल्काली लायोराइट। तो ये जो है ये तुम्हारा बासल्ट का इवोल्यूशन पाथ है। देन ऊपर चलेंगे, पिक्रो बासल्ट, अल्काली बासल्ट, ट्राकी बासल्ट, बासल्टिक ट्राकी एंडेसाइट। ये जो ट्राकी बासल्ट एंड बासल्टिक ट्राकी एंडेसाइट ना, दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू पोटासिक ट्राकी बासल्ट, सोसोनाइट, लाटाइट, मुगेराइट, बेनमोराइट, हावाइट। ठीक है, इसको तुम देख लो। अगर ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन में इफ यू आर जस्ट टेकिंग इन 3 डायमेंशन में, इसमें एक डायमेंशन ऐड करके अगर तुम Na2O K2O को इसमें प्लॉट करते हो, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा पोटासिक ट्रैकीबासल्ट, हवाइट, सोसोनाइट, मुगेराइट, लाटाइट, बेनमोराइट, यहाँ से क्वेश्चन गेट में पहले से भी आ चुका है। ओके, तो इसको अच्छे से देखना है। देन अनदर थिंग, जो तुम्हारा ये जो टास्क डायग्राम है, टास्क डायग्राम में भी बहुत सारे लैकुना हो जाता है। जैसे कि ये देखो, ये तुम्हारा एंडेसाइट, ये बासल्टिक एंडेसाइट, बासल्ट, ये पिक्रोबासल्ट एंड बासानाइट टेफ्राइट, और ये तुम्हारा फोइडाइट है। नाउ इसके नीचे से इफ फर्दर इफ आई जस्ट वांट टू डिफरेंशिएट द कोमाटियाइट एंड मिमेचाइट, ये भी जो भी है, और यहाँ पर एक बोनिनाइट, एक मैग्मा से मैग्मा है, तो इसको अगर इफ आई जस्ट वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, देन this task diagram is also not sufficient, self-sufficient to differentiate these two things, जिसमें MgO and TiO2 को हम देखना पड़ता है। if MgO is greater than 80%, both MgO greater than 80% अगर हो जाते हैं, उसके बाद TiO2 को देखना पड़ेगा। if it is greater than 1, that is this one, if this is TiO2 less than 1, that is comatiite, and comatiite, that is the characteristics of your precambrian rocks। ठीक है, एंड CIP नेफेलिन एंड अल्बाइट वर्सेस यहाँ तो बासानाइट एंड नेफेलिनाइट, ये दोनों बस नॉर्मल एक लाइक डिफरेंशिएशन कैसे डिफरेंट तुम करोगे। ठीक है, ये तुम्हारा बासल्ट टेट्राहेड्रॉन है, बासल्ट टेट्राहेड्रॉन में जैसे कि ये तुम्हारा नेफेलिन है, क्वार्ट्ज है, ओलिविन है, OPX एंस्टाटाइट, CPX डाइऑक्साइड है। ठीक है,
तो इसमें ये क्वार्ट्ज थोलियाइट है, ये तुम्हारा क्वार्ट्ज थोलियाइट, ये है ओलिविन थोलियाइट, ये प्लेन ऑफ सिलिका सैचुरेशन थोलियाइट, इसको इसके बारे में डिटेल में कहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये है तुम्हारा अल्काली ओलिविन बासाल्ट, प्लेन ऑफ सिलिका अंडर सैचुरेशन। एंड यहाँ पर देखो जो तुम्हारा ओलिविन थोलियाइट से ओलिविन थोलियाइट दीज आर अंडर सैचुरेटेड फर्स्ट थिंग, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय नॉर्मेटिव मिनरल ओलिविन एंड हाइपोस्थीन। ओलिविन थोलियाइट को ओलिविन थोलियाइट के लिए हाइपोस्टिन तुम्हारा नॉर्मेटिव है, मतलब हाइपोस्टिन रहना जरूरी है इफ यू आर एड्रेसिंग वन मैग्मा सीरीज टू बी ओलिविन थोलियाइट। ठीक है, ओलिविन थोलियाइट में ओलिविन के साथ हाइपोस्टिन रहेगा, क्वार्ट्ज थोलियाइट में क्वार्ट्ज के साथ हाइपोस्टिन रहेगा, थोलियाइट्स में हाइपोस्टिन, नॉर्मेटिव मिनरल हाइपोस्टिन रहना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा अंडर सैचुरेटेड है उसमें नेफेलिन नॉर्मेटिव रहना जरूरी है। ठीक है, ओलिविन बासाल्ट अंडर सैचुरेटेड कैरेक्टर वाइज नॉर्मेटिव ओलिविन, यहाँ पे हाइपोस्टिन नहीं होता है। अंडर सैचुरेटेड में देखो तुम्हारा हाइपोस्टिन नहीं है, लेकिन इसमें जो तुम्हारा नॉर्मेटिव मिनरल क्या है, नेफेलिन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, दिस इज बासाल्ट टेट्राहेड्रॉन, इसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ये यूएमएल एएल ये जो है बेसिकली, ये देखो लैम्प्रोइड्स, लैम्प्रोइड्स कहाँ पर आएंगे, देखो इसका ये ब्रॉड रीजन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड रीजन हो गया। ये देखो तुम्हारा सोव अल्काली बासाल्ट, ये तुम्हारा अल्काली बासाल्ट, ट्रकाइट, बासानाइट है, टेफ्राइट ओलिविन अगर लेस देन 10% है उसको बोलेंगे टेफ्राइट, ओलिविन ग्रेटर देन 10% है उसको बोलेंगे बासानाइट। ठीक है, बासाल्टी ट्राकी एंडेसाइट, ट्रकाइट, टेफ्रीफोनोलाइट, फोनोलाइट, ये सब जितना भी है, एंड दिस इज योर लैम्प्रोइड्स। ठीक है, एंड यूएमएल एएल जो है ये तुम्हारा अल्काली लैम्प्रोफेयर, ये अल्ट्रामैफिक लैम्प्रोफेयर। यूएमएल क्या होता है, दिस इज अल्ट्रामैफिक लैम्प्रोफायर। ठीक है, ये हो गया, ये तुम्हारा देन ये तुम्हारा लास्ट डायग्राम है, इसमें मैग्मा सीरीज है। मैग्मा सीरीज में बेसिकली कैसे कि कैल्क अल्कालाइन एंड थोलिटिक्स, फर्स्ट जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन है वो है तुम्हारा अल्कालाइन एंड सब अल्कालाइन, देन अल्कालाइन सब अल्कालाइन को फर्दर क्लासिफाई करेंगे थोलियाइट कैल्क अल्कालाइन, फर्दर उसको देखेंगे ये बासाल्ट टेट्राहेड्रॉन को लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बासाल्ट कैसे आते हैं। ये हो गया, ये होने के बाद हम देखेंगे एल्यूमिनियम कंटेंट को लेके Al2O3 Na2O को लेके हम देखेंगे पोर अल्यूमिनस, मेटा अल्यूमिनस, पोर अल्कालाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेनाइट्स को भी हम यहाँ पर पोर अल्यूमिनस, मेटा अल्यूमिनस में भी डाल सकते हैं। एंड फर्दर उसके बाद देखेंगे Na2O को अगर तुम फिर से अगर तुम फॉर सब क्लासिफाई करते हो, देन हाई पोटासियम सीरीज एंड सोडियम सीरीज इसका अलग से आ जाता है। ठीक है, एंड ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइक अल्कालाइन एंड सब अल्कालाइन में तुम्हारा थोलिटिक्स एंड कैल्क अल्कालाइन जो मैग्मा सीरीज आता है, एंड दोज मैग्मा सीरीज कौन कौन सा सेटिंग में कहाँ पर आते हैं, कौन कौन सा जैसे कि हवाई में आते हैं या फिर कोई दूसरा एरिया में आते हैं, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास। सो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ थैंक यू, and if you have any kind of doubt then you can ask me right now.